Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class 9 students, as we are already discussing about the chapter that's improvement in food resources, and from that chapter we will today discuss about a new topic, and that's here called as improvement in crop yield. So improve means simply हमने discuss किया है कि to improve it. So crop yield means to measure up grains or seed generated from a unit of land. एक यूनिट ऑफ लैंड पे कितना हार्वेस्ट हुआ है, कितना हमने क्रॉप जो है क्रॉप प्रोड्यूस हो गया है वहाँ से, दैट्स हियर क्रॉप प्रोडक्शन. तो कितनी क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड जो है हमें मिला. तो यूनिट ऑफ लैंड जो है मोस्टली हेक्टेयर देखते हैं. तो क्रॉप यील्ड, अब उसी क्रॉप यील्ड में क्या होना है, उसको इम्प्रूव करवाना है. इम्प्रूव करवाना है उस क्रॉप यील्ड को, दैट्स कॉल्ड एज हियर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. And for the improvement in crop yield, there are different activities which are to be involved. So different activities which are to be involved from the crop for the improvement in crop yield, that's called as here. तो यहाँ पे हम देखेंगे crop variety improvement, crop production management, crop protection management. तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि the major groups of activities for improvement in crop yield, are. So there are three different activities which help us to improve our crop yield. So crop yield is what it is now, measure of grains, कितना outcome हमें वहाँ से मिलेगा. And this crop yield may be sometimes called as agricultural output. So this crop yield may be sometimes called as agricultural output. तो कितना agricultural output हमें मिलना चाहिए per hectare of land, that's called as here crop yield or agricultural output. तो ये agricultural output जो है ये हमेशा के लिए हमें ज़्यादा ही मिलना चाहिए, because मैंने पहले ही कहा in order to meet the demands of growing population, that's why we have to improve our crop. So we have to improve our crop yield, we have to improve our crop resources. So the major techniques which are to be utilized for improvement in crop yield, these are here three techniques which we will discuss here one by one. First technique is that's crop variety improvement. Crop variety improvement. And second one which we will discuss later on, that's called as crop production management. And the third one, that's called as here crop protection management. So three activities are here important in order to improve the crop yield. The first is here crop variety improvement, second one is here crop production improvement, and third one is here crop protection management or improvement. तो इन तीन टर्म से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो यील्ड है, दैट्स हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, उस एग्रीकल्चरल आउटपुट को हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव करवा सकते हैं. तो मैंने पहले ही कहा हम क्यों इम्प्रूव करना चाहेंगे इसको, बिकॉज वी हैव ग्रोइंग पॉपुलेशन, and in order to meet the demands of that growing population, we must have to improve our crop yield, we must have to increase our agriculture output. So how we can increase our agriculture output? There are three processes for that. One is called as here crop variety improvement, crop production management, crop protection management. तो सारा चैप्टर जो है वो इन्हीं तीन टर्म्स पे मोस्टली यहाँ पे डिपेंड है. So now we will discuss here first one, that's called as crop variety improvement. So crop variety improvement असल में अगर हम देखेंगे होता क्या है, crop variety improvement means improving or finding a variety of crops that give the better yield. क्योंकि हम yield पे बात कर रहे हैं, to produce maximum yield here.
तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट अब होता क्या है यहाँ पे हम देखेंगे. सो इट इज़ ए टेक्निक, it is a technique or it is a practice. So it is a technique or it is a practice to find a variety of crop, to find a variety of crop, to find a variety of crop, variety of crop. लेकिन कौन सा क्रॉप? फाइंड ए वैरायटी ऑफ क्रॉप विच कैन स्टैंड, विच कैन स्टैंड with different situations, with different situations like high soil salinity, like high soil salinity, या दूसरा हम यहाँ पे कहेंगे कि climatic conditions, water availability, and here is good yield. तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट सिंपली हम कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है या ये एक प्रैक्टिस है. किसके लिए ये एक प्रोसेस या प्रैक्टिस है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर स्पीशीज, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्रॉप, दैट क्रॉप वैरायटी विच इज फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फर्स्ट विच इज फ्री फ्रॉम diseases, or which can stand with different environmental conditions, which can stand with different environmental harshnesses. For example, high soil salinity, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होगी तो ऐसा हमें कुछ वैरायटी ऐसा हमें कुछ क्रॉप वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए जो क्रॉप उस सैलिनिटी पे भी विथस्टैंड रहे. ऐसा नहीं कि कोई ऐसा भी क्रॉप हम वहाँ पे प्लांट करें तो उसके बाद सैलिनिटी की वजह से वो ख़त्म हो जाए. तो वो क्रॉप हमें सिलेक्ट करना है जो हाई सैलिनिटी पे भी रहे और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी वो रहे. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हुआ तो वो विथस्टैंड रहना चाहिए. तो ऐसी कोई हमें यहाँ पे क्रॉप वैरायटी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए या फाइंड करनी चाहिए. या अगर हमारे पास क्रॉप वैरायटी है, अब हम उस क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज हियर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. यानी कि हम किसी पर्टिकुलर वैरायटी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. या तो हम डायरेक्टली उसको फाइंड आउट करेंगे एक चीज़, या तो हम अगर फाइंड आउट तो नहीं करेंगे, अगर है हमारे पास, अब इसी वैरायटी को हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे. दैट ऑल इम्प्रूविंग or finding a variety of crop which gives the better yield, that's called as crop variety improvement. तो crop variety improvement में आपको सिंपली ये याद रखना है कि या तो हम इम्प्रूव करेंगे या तो हम फाइंड करेंगे. इम्प्रूव करेंगे अगर हमारे पास है ऑलरेडी तो उसको इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो हम ढूंढेंगे कौन सी वैरायटी हमारे सॉइल के लिए अच्छी है तो वो वैरायटी हम सीड्स की लाएंगे. अगर हमारे पास अवेलेबल है क्रॉप प्लांट्स, अब ये क्रॉप प्लांट्स जो है हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये इनका जो क्रॉप यील्ड है, तो हम कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स फॉर दैट. तो या तो हम इम्प्रूव करेंगे या तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन कौन सी वैरायटी? वो वैरायटी जो कि हमें बेटर यील्ड देगी, जो कि फ्री फ्रॉम डिजीज होगी, जो कि विथ स्टैंड विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस रहेगी. यानी कि सॉइल सैलिनिटी, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, या वाटर अगर अवेलेबल नहीं रहेगा उसको फॉर द टाइम बीइंग, तो वो ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो कि विथ स्टैंड होनी चाहिए वाटर डेफिशिएंसी पे. या अगर वाटर ज़्यादा भी कभी कभी होता है, मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा होती है, तो उस मॉइस्चर कंडीशन पे भी वो वैरायटी जो है वो विथस्टैंड रहनी चाहिए. तो ऑल द प्रैक्टिसेस विच वी अप्लाइड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक क्रॉप वैरायटी, दैट्स कॉल्ड एज हियर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. अब हम ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि क्रॉप यील्ड इंक्रीज करने के लिए. तो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमने बेटर क्वालिटी चाहिए.
तो सिंपली हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंडिंग आर इम्प्रूविंग, या तो मैंने पहले ही कहा फाइंड करो टू फाइंड आउट ए न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड दैट न्यू वैरायटी विच कैन withstand with different environmental conditions, free from disease, etc. So finding or improving a variety of crop that gives better yield. That's called as crop variety improvement. और ये जो crop variety improvement होती है, there is science for developing the crop variety improvement, and that science which plays important role for improvement of crop variety, that's called as plant breeding. तो कौन सा साइंस है जो इम्प्रूव करेगा, किसको इम्प्रूव करेगा? क्रॉप वैरायटी को. सो द साइंस ऑफ improving the science of improvement of crop variety, the science of improvement of crop variety is called plant breeding. BREEDing, प्लांट ब्रीडिंग. तो यही हमने कहा कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट सिंपली हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कोई स्पेसिफिक वैरायटी, या अगर हमारे पास है उसको इम्प्रूव करवाएंगे ताकि हमारा यील्ड इंक्रीज हो सके. तो जो अब वो ब्रांच ऑफ साइंस या वो साइंस जो कि इम्प्रूव करेगा किसी पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी को, एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the improvement of crop varieties, that's called as plant breeding. And we will discuss now the plant breeding but in the next video. Thank you very much.